السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ متحارب افغان دھڑوں کے درمیان سیاسی تصفیے کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ کوئی بھی فریق عسکری قوت کے ذریعے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ افغان نژاد امریکی سفیر نے زور دے کر کہا کہ اگر طالبان طاقت کے ساتھ ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ خود کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کرا سکیں گے اور وہ ایک اچھوت حکومت ہوں گے۔ زلمے خلیلزاد نے مزید کہا کہ ہم نے ہمیشہ ایسے راستوں اور ذرائع کی خواہش کی ہے جو مذاکرات کے عمل کو تیز کرنے میں مددگار ہوں، کیونکہ ہم افغانستان کی جنگ کا فوجی حل نہیں دیکھتے۔ اس کا سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے، ایک دیرپا امن کے لیے سیاسی معاہدہ ہونا چاہیے، اور ہم اس کے لیے کوشاں رہیں گے۔ افغان سیکیورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہوائی اڈوں کے اطراف میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے پیش نظر ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ جوائنٹ سیکیورٹی فورسز کے ایک ترجمان جنرل عمر اجمل شنواری نے کہا کہ ان تیاریوں کے سلسلے میں بعض وقت شہریوں کی زندگی کے تحفظ اور طیاروں کی حفاظت کی خاطر افغانستان میں پروازوں کو منسوخ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے حملوں کے سبب کابل ہرات اور کابل قندھار پروازیں منسوخ کرنی پڑیں۔ افغان سول ایوی ایشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ دونوں جگہوں کے لیے پیر کے روز پروازیں بحال کر دی گئیں۔ یورپ کو تشویش ہو رہی ہے کہ طالبان کی پیش قدمی سے افغان تارکین وطن کی تعداد بڑھے گی۔ ہر روز پہلے سے زیادہ افغان پناہ گزین ایران کا خطرناک سفر کر کے ترکی پہنچ رہے ہیں، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ کسی ایسے ملک پہنچنا چاہتے ہیں جو یورپی یونین کا رکن ہو۔ ہر روز تقریباً 2000 افغان ترکی پہنچ رہے ہیں، اور ماہرین کہتے ہیں کہ طالبان کے افغانستان میں مزید علاقوں پر قبضے سے اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے پیر کو فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تشدد کے تناظر میں خطرے کے شکار افغانوں کے انخلاء کا پروگرام کا دائرہ کار بڑھایا جائے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی خبر رساں اداروں اور امریکی امداد حاصل کرنے والی امدادی اور ترقیاتی ایجنسیوں میں کام کرنے والے افغان باشندوں اور ان کے خاندانوں کو بھی امریکہ میں ریفیوجی کا درجہ دے دیا جائے گا۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید کئی ہزار افغان باشندوں اور ان کے خاندانوں کو امریکہ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کا موقع مل سکے گا۔ محکمے نے اس پروگرام کے تحت اہل افراد کی تعداد نہیں بتائی۔ بھارتی پارلیمنٹ میں مبینہ پیگاسس جاسوسی معاملہ، زرعی قوانین، کورونا وبا اور مہنگائی سمیت متعدد امور پر بحث کرانے کے حزب اختلاف کے مطالبے اور حکومت کے انکار کی وجہ سے پارلیمانی اجلاس میں جاری تعطل کے درمیان اصل اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے منگل کے روز حکومت کے خلاف حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا ایک بریک فاسٹ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں کانگریس سمیت 15 سیاسی جماعتوں کے 100 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے حصہ لیا اور مذکورہ امور پر بحث کرانے کے لیے حکومت کو مجبور کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے بعد راہل گاندھی سمیت تمام اپوزیشن اراکین سائیکل سے پارلیمنٹ ہاؤس گئے۔ ادھر حکومت کا الزام ہے کہ حزب اختلاف پارلیمانی کارروائی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ میانمار میں فوجی ہنتا نے الیکشن کے بارے میں 2 سال کا جو منصوبہ پیش کیا ہے وہ وقت گزارنے والی بات ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آسیان کے ملکوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ میانمار کے حوالے سے ایلچی کا تقرر کریں۔ آسیان مذاکرات سے پہلے میانمار کے فوجی لیڈر نے
अगस्त 2023 तक इलेक्शन के इनेकाद का वादा किया है। बताया जाता है कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान मुल्क में एहतजाज और हंगामों के नतीजे में 900 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। मिस्र की मुसल्ह अफवाज ने इतवार के रोज़ बताया कि इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 8 फौजी सिपाही मारे गए हैं। मुसल्ह अफवाज के बयान के मुताबिक ज़्यादातर लड़ाई शिमाली सिनाई के इलाके में हुई, जहां दाइश के वफादार ग्रुप कार्रवाइयां करते हैं। बयान में कहा गया है कि बहुत ख़तरनाक नवासी तकफीरीस शिमाली सिनाई में लड़ाई के दौरान हलाक हुए। ये इस्तिलाह उमूमन मुश्तबा अस्करियत पसंदों के लिए इस्तेमाल होती है। दाइश ने उसके बाद से शिमाली सिनाई में फैलना शुरू किया जब अखवानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले सदर मोहम्मद मुर्सी का फौज ने सन 2013 में तख्ता उलट दिया था। ईरान के नए इंतहाई क़दामत पसंद सदर इब्राहिम रईसी आज मंगल के दिन अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वो एतदाल पसंद सदर हसन रूहानी की जगह लेंगे। इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त में अपना ओहदा संभाल रहे हैं जब मुल्क को मईशत और सेहत के शोबों में बहरानों और साथ ही मगरबी मालिक के साथ कशीदगी का सामना है। इब्तिदाई से इब्राहिम रईसी को जौहरी मुज़ाकरात से निमटना होगा, जिसका मकसद इस माहदे में जान डालना है जिससे अमरीका यकतरफा तौर पर अलग हो गया है। इब्राहिम रईसी अदलिया के साबिक सरबराह हैं और मगरबी मालिक उनके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। इब्राहिम रईसी ने अपने इंतखाब के बाद कहा है कि उनकी कलीदी खारजा पॉलिसी का मकसद इलाकाई मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत में तब्दीली के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिसे रवा माह मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने रवा साल मार्च में एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की थी, जिसमें इस इलाके को अबूरी सूबा करार देने का मुतालबा किया गया था। हाल ही में पाकिस्तान में वफाकी और तमाम ही सूबाई हुकूमतों ने कम से कम तनख्वाहों में इजाफा किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इजाफा सूबे सिंध में 25,000 रुपये किया गया है। ताहम सूबे में मौजूद कई सनतों के मालिकान ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए अदालत में चैलेंज किया है। ताजरों का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से ये इजाफा बहुत ज़्यादा और नाकाबिल अमल है, जबकि हुकूमत के मुताबिक ये फ़ैसला मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के असरात गरीब ख़ानदानों पर कम करने के लिए किया गया है। ताहम इस शोबे से जुड़े माहिरीन का कहना है कि कई शोबों में मजदूरों को पहले से तयशुदा कम से कम तनख्वाह से भी कम अदायगी की जाती है, जबकि हुकूमत की जानिब से उस पर कोई नज़र नहीं रखी जाती। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वबा पर काबू पाने के निगरां इदारे NCOC के सरबराह असद उमर ने मुल्क में एक दिन के दौरान रिकॉर्ड 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाए जाने का हदफ पूरा होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हदफ के हुसूल में तमाम वफाकी ज़िम्मेदारान ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम किया और सब ने हैरत अंगेज काम किया। कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा चीन में तेज़ी से फैल रही है और ये अब तक 20 से ज़ायद शहरों और 1 दर्जन से ज़ायद सूबों में फैल चुकी है। डेल्टा किस्म की रोकथाम के लिए कई शहरों में सख्त पाबंदियां नाफिज हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है, जबकि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। चीन के शहर वुहान में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद तमाम आबादी के टेस्ट करने का फैसला किया गया है। वुहान में 1 साल बाद पीर को कोरोना के 7 केसेस सामने आए थे। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि आलमी वबा ने यहाँ से जन्म लिया था और फिर पूरी दुनिया में फैल गई थी। वुहान के हुक्काम ने मंगल को कहा कि मकामी सतह पर एक दूसरे में मुंतकिल होने वाले कोरोना केसेस सामने आने के बाद शहर की तमाम 1 करोड़ 10 लाख आबादी के टेस्ट किए जाएंगे। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पीर के रोज़ अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बेशतर हिस्सों से आने वाले मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों का खैर मकदम किया गया। ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि वो करंतना की पाबंदी से आज़ाद हैं। हीथ्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव
जॉन हॉलैंड काय ने करंतना के कवानीन के खात्मे को एक संग मील करार देते हुए कहा कि इसकी वजह से उन खानदानों को दोबारा मिलने का मौका मिला है जिन्हें कोविड-19 की पाबंदियों ने 18 माह तक अलग रखा। कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म सबसे पहले भारत में पाई गई और इस वक्त बर्तानिया और दीगर जगहों में फैल रही है। अमरीकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत रहा है। साउथ कैरोलिना से ताल्लुक रखने वाले रिपब्लिकन पहले सेनेटर हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाने के बावजूद इस अहम इन्फेक्शन के बारे में बताया है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के हुक्काम ने पीर से ब्रिस्बेन शहर में पहले से नाफिज शुदा लॉकडाउन में मजीद तौसी कर दी है। सदर बाइडन ने पाकिस्तानी नजाद वकील खिजर खान का तकर्रुर, जो गोल्ड स्टार फादर भी हैं, अमरीकी फौजियों और मजहबी आज़ादियों के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के तौर पर कर दिया है। खिजर खान ने सन 2016 में उस वक्त अमरीका भर में तवज्जो हासिल कर ली थी जब उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के कन्वेंशन में उस वक्त के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर मजहबी आज़ादियों के हवाले से उनके एक बयान पर कड़ी तनकीद की थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमायमा खान को पाकिस्तान छोड़े हुए 18 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से आज भी उनका ताल्लुक़ कहीं न कहीं पहले ही की तरह है। हाल ही में जमायमा खान और पाकिस्तानी फिल्म साज महनाज दीवान की मुख्तसर फिल्म मुलाकात को 78वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए मुंतखब किया गया। जमायमा खान ने इस फिल्म का हिस्सा बनने से मुताल्लिक़ वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू के दौरान बताया कि पाकिस्तान के साथ उनका गहरा रिश्ता है। आबिद अजीज़ मरचटला की जानिब से प्रोड्यूस की जाने वाली मुख्तसर फिल्म मुलाकात को रवां बरस सितंबर में दुनिया के मोतबर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। जब आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं तो ये लाखों अफराद तक पहुंच जाता है। हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।